नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा। आज आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ ये आपकी बीएड सेकेंड ईयर की कॉर्स 10 से रिलेटेड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से रिलेटेड ही वीडियो है। तो इस वीडियो की अगर हम बात करें तो ये वीडियो है एक चैलेंज हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, और ये एक चैलेंज उनके लिए भी है कि जो इस डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, जो इस डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं और जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, और हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह से ओवरकम करना है और किस तरह से इस प्रॉब्लम का सामना करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहले मैं वीडियो दिखाने से पहले आपको एक छोटी सी एनिमेटेड जो वीडियो है इस टॉपिक से रिगार्डिंग वो आपको दिखाना चाहूंगी, जिससे कि आप गेस कर सकें कि आज का टॉपिक किस बारे में है, किसके बारे में है और क्या है। तो आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। Did you know that 360 million people worldwide experience some form of hearing loss? That's more than 5% of the world's population. In the United States alone, hearing loss affects 1 in 10 and 3 in 10 over the age of 60. Age is the most common cause of hearing loss, but it can be caused by many other factors as well. Hearing loss is often gradual, and the effects are often not immediately obvious. Most often, a family member, friend, or loved one will notice the subtle change in behavior that signal there may be an issue, such as missing parts of conversations and a difficulty hearing in noisy places, or asking to turn the volume up on the TV or radio. Hearing loss is not like listening to sounds with the volume turned down. Instead, it's a difficulty understanding certain high-pitched sounds and consonants, especially in noisy environments. Does this sound familiar? You or someone you love may be experiencing hearing loss, but don't worry. There are several professionals dedicated to helping you determine if that's the case. The process is easy and straightforward, and you can choose to schedule a hearing exam with an audiologist, hearing instrument specialist, or an ear, nose, throat physician, also known as an ENT or otolaryngologist. An audiologist is a licensed healthcare professional trained to evaluate hearing loss and related problems, including tinnitus and balance disorder. A hearing instrument specialist works primarily with hearing aids. And an ENT is a medical doctor specializing in the diagnosis and treatment of the ear, nose, and throat, and offers medical and surgical treatments for certain types of hearing loss. Whichever professional you choose, know that you are in good hands. During your first appointment, the professional will perform a hearing test. This includes answering some simple questions about your hearing experiences, a physical exam of your ear canals, and a listening test where you'll respond to different tones and speech samples. Throughout the hearing test, the hearing professional will get a good idea of sounds that you can hear and will recommend hearing aids, if appropriate. Modern hearing aids are a fraction of the size they once were and full of new technology, like the ability to stream sound directly from a smartphone or mobile device. Hearing aids not only address hearing loss, but they also enable you to engage at home and work in ways you weren't able to before. For more information or to find a professional near you, visit resound.com/find a professional. तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये नहीं कि इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। जैसे हमने बात की ऑडियोलॉजिस्ट की, और जैसे हमने बात करी हियरिंग डिवाइसेस एक्सपर्ट्स की, और जैसे हमने बात करी ईएनटी डॉक्टर्स की, तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं हमारे पास जिनसे कंसल्ट करके हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और उन बच्चों के सर्वाइवल में भी हेल्प कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग। हियरिंग इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का अर्थ क्या है? हियरिंग मतलब श्रवण बाधिता या श्रवण अक्षमता, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जब कान में किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि उससे हम श्रवण बाधित हो जाते हैं या श्रवण संबंधी दोष हमारे अंदर आ जाता है या श्रवण संबंधी अक्षमता हमारे अंदर आ जाती है, और इसी को हम कहते हैं श्रवण अक्षमता। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज हियरिंग लॉस occurs when you lose the part of all of your ability to hear. हियरिंग इम्पेयरमेंट उसे कहते हैं कि जब आप सुनने से संबंधित अपनी पूरी क्षमता
यानी कि या तो आप उसको पूरी क्षमता को, यानी कि आप डीफ हो जाएंगे, पूरी क्षमता को खो देंगे, आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, और या फिर उसका एक पार्ट, या फिर आप पार्शली इस चीज से अफेक्टेड है जब आपको सुनाई ना दे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? हियरिंग इम्पेयरमेंट, या फिर श्रवण बाधिता, या फिर श्रवण अक्षमता। ठीक है। अदर टर्म्स दैट यूज टू रेफर हियरिंग इम्पेयरमेंट आर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। इनको हम डीफ भी कहते हैं और हार्ड ऑफ हियरिंग भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स आर क्लासिफाइड टर्म्स ऑफ सेवरिटी एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। The severity of hearing impairment is categorized on the basis of minimum sound that can be heard with your better ear। ठीक है, इसमें हम किस तरह की सेवरिटी या फिर किस प्रकार के, इसमें हमने कैटेगराइज कैसे करते हैं कि जैसे आपको पता है कि जब भी हम सुनते हैं तो वो डीबी में होता है। डेसिबल में जो साउंड है वो किस में मेजर होती है? डीबी में मेजर होती है। ठीक है, डेसिबल में मेजर होती है। तो हम क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि आपके जो बेटर ईयर से आप कितने साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, वहां से हम क्लासिफाई करेंगे इन चीजों को कि इसकी कितनी कैटेगरी है, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट की कितने कैटेगरीज हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ HI। HI मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं, देखिए 27 to 39 dB। dB मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया डेसिबल। जैसे हम हर चीज की काउंट कैटेगरी होती है कि जिसमें हम उनको काउंट करते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में काउंट करते हैं, इसी तरह की जो साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको हम किस में काउंट करते हैं? डेसिबल में, डीबी में काउंट करते हैं। तो 27 to 39 dB क्या कहते हैं इसको? स्लाइटली हार्ड ऑफ हियरिंग। स्लाइटली हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको दूर की साउंड बहुत कम सुनाई देगी, लेकिन अगर आपके पास कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन करता है आके, या फिर नॉर्मल बातचीत करता है, तब वो साउंड आपको सुनने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई थोड़ी सी दूरी पर आपसे वो बात कर रहा है, तब आपको उस चीज को सुनने में दिक्कत आ सकती है। ओके, नेक्स्ट इज 40 to 54। 40 to 54 is mildly hard of hearing। माइल्डली हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने फर्स्ट कैटेगरी में बताया कि आप कन्वर्सेशन की साउंड, अगर कोई आपके पास आके कन्वर्सेशन करता है तो आप उस साउंड को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई माइल्डली हार्ड ऑफ हियरिंग में अगर कोई आपके पास आके भी कन्वर्सेशन करता है, तब भी उसको थोड़ी सी लाउड वॉइस में बात करनी पड़ती है, यानी कि सिंपली कन्वर्सेशन आप उसकी सुन नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 55 to 70 dB। 55 to 70 डेसिबल में क्या आएगा? हार्ड ऑफ हियरिंग। यस, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई आपसे, आपकी अगर हम बात करें कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो आपको उसकी साउंड सुनने में प्रॉब्लम होगी। कन्वर्सेशन आप सुन ही नहीं पाएंगे, और उसकी साउंड, मैंने कहा कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आपसे कोई है, तब आप उसकी साउंड को नहीं सुन पाएंगे, आपको सुनने में दिक्कत आएगी। इसे हम कहेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट इज 71 to 89 dB। सेवरली हार्ड ऑफ हियरिंग। इसमें क्या आएंगे कि अगर आप देखिए कि अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपको सुनने में उसकी बात को दिक्कत आएगी। यहाँ पर क्या है कि सेवरली हार्ड ऑफ हियरिंग में क्या होता है कि अगर कोई भी आपसे, आप ये देखिए कि अब हम कह सकते हैं कि आपसे 1 फुट की, ठीक है ना, दूरी पर है, 1 फीट, यानी कि आपसे बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, उसका बिल्कुल आपके पास खड़ा है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास कोई खड़ा है, फिर भी आपको उसको सुनने में दिक्कत आएगी। तो दैट इज सेवरली हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट इज 90 dB एंड अबव। अगर किसी की सुनने की क्षमता 90 डेसिबल या फिर उससे ज्यादा है, तो उसे हम किस में काउंट करेंगे? दैट इज कॉल्ड डीफ। यू नो दैट कि उससे ऊपर तो फिर प्रोफाउंड ही कैटेगरी चली जाती है कि डीफ की जब बात आ जाती है तो उसमें कोई किसी भी तरह की सुनने में असमर्थता होती है, उसको कोई भी साउंड
सुनाई नहीं देती। कॉजेज की बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर एचआई। एचआई के लिए कौन कौन से कॉजेज है? रिस्पॉन्सिबल कॉजेज, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज है कि कई बार ऐसा होता है कि एक एचआई बच्चे की जो फैमिली हिस्ट्री है, हियरिंग इम्पेयर बच्चे की फैमिली हिस्ट्री है कि उसकी हेरिडिटी फैक्टर है कि उसकी फैमिली में इसी प्रकार से एचआई से ग्रस्त बच्चे हो रहे हैं लगातार, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट एंड रीअकरिंग ऑफ ईयर इन्फेक्शन ऑफ एन इन्फेंट और टॉडलर्स, कि कई बार छोटा बच्चा जब होता है तो उसके आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो जिनसे बच्चा ग्रस्त हो जाता है बहुत इन्फेंट एज में ही। कई बार आपने देखा होगा कि कानों में से बच्चे की सिक्रेशन आती है, वैक्स सा निकलता है, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। फिर देखिए सम एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेपी, जब हम ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं और कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि इस प्रकार के डिजीज होने का खतरा रहता है, बच्चे के एचआई होने का खतरा रहता है। फिर देखिए, ठीक है, मेनिंजाइटिस, मीजल्स एंड सीएमवी, ठीक है, साइटोमेगलोवायरस। तो व्हाट आर दीज वायरस? अब हम बात करें मेनिंजाइटिस की, तो मेनिंजाइटिस कौन सा वायरस है? अब मेनिंजाइटिस एक ऐसा वायरस, आपने देखा होगा कि हमारे जो सिर है ना, इसकी जो ऊपर की लेयर है ये बड़ी हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस है हमारा, और हार्ड सरफेस के नीचे एक बहुत सॉफ्ट लेयर होती है। तो उस सॉफ्ट लेयर पे स्वेलिंग आने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को हम हिंदी में दिमागी सूजन भी कहते हैं कि दिमाग में सूजन आ गई, उसकी वजह से भी बच्चा एचआई हो सकता है। आगे देखिए मीजल्स आपको पता है कि छोटे बच्चों को अक्सर हम बोलते हैं कि खसरे का टीका लगवाया क्या, या खसरे का टीका लगवा लेना। आम भाषा में हम मीजल्स को क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। और जब बच्चा खसरे से ग्रस्त हो जाता है तो उसके ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तक कान भी ग्रस्त होंगे, तो उसकी वजह से भी कई बार जो बच्चा है वो एचआई से ग्रस्त हो जाता है या हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाता है। फिर देखिए सीएमवी, साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन। अब व्हाट इज सीएमवी, व्हाट इज साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन? तो ये इन्फेक्शन इस प्रकार का इन्फेक्शन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमने सीएमवी कहा है, तो सीएमवी इन्फेक्शन जो है ये एक जब बच्चा तब होता है जब बच्चा मदर के पेट में होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम मदर को होती है सीएमवी। और कई बार जो डॉक्टर्स हैं, अक्सर, कई बार नहीं हम कह सकते कि अक्सर डॉक्टर सीएमवी का टेस्ट कराते हैं बच्चों का, कि मदर का भी टेस्ट कराते हैं और कई बार बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे का भी टेस्ट कराया जाता है सीएमवी। तो सीएमवी टेस्ट में अगर इस तरह की बच्चों को सीएमवी की दिक्कत है तो बच्चों को चिकन पॉक्स होने की चांसेस रहते हैं। बच्चों को जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है और बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, पीलिए से शिकार बच्चे हो जाते हैं, उनकी वजह से भी एचआई की शिकायत बच्चों को हो जाती है या फिर एचआई से ग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिए सम सिंड्रोम्स एंड डिसेबिलिटीज हैव बीन एसोसिएटेड विद कॉजिंग हियरिंग लॉस। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सिंड्रोम हैं और कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज हैं कि जिनकी वजह से बच्चा एचआई हो जाता है। अब वो कौन से सिंड्रोम है या फिर वो कौन सी डिसेबिलिटीज है जिनकी वजह से ऐसा होता है? सबसे पहले है आपका डाउन सिंड्रोम। अब अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, आप ये देखिए कि जब भी आपने ये पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, 10th तक भी हम ये चीज पढ़ लेते हैं, सभी बच्चे चाहे वो साइंस के हैं आर्ट्स के, सभी पढ़ते हैं इन चीजों को, कि हमारे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें गुणसूत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम ये कहते हैं कि 23 गुणसूत्र जो है वो माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र जो है वो बच्चे को पिता से मिलते हैं। तो 46 गुणसूत्र जो है वो टोटल होते हैं जिस पर बच्चा आधारित होता है। और अगर हम इन गुणसूत्रों की बात करें तो 23वां गुणसूत्र हमें निर्धारित करता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। आप सभी को पता है, जैसे XX मिलते हैं तो क्या होती है? बेबी गर्ल होती है, और XY मिलते हैं तो मेल बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बेबी बॉय पैदा होता है। तो उसमें क्या है कि ये गुणसूत्र अगर नॉर्मल रूटीन में चले, जैसे आपको पता है कि पेयरिंग में होते हैं,
सभी गुणसूत्र। लेकिन ये जो है प्रॉब्लम जो है डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम कब आती है कि जब जो पेयर बने होते हैं, जो हमारा 21वां पेयर होता है, 21 पेयर जिसे हम कहते हैं, उसमें 2 पैरेलल होने की बजाय 3 होते हैं, यानी कि 3 गुणसूत्र होते हैं, तब बच्चों में ये दिक्कत आती है डाउन सिंड्रोम की। और डाउन सिंड्रोम के आपने लक्षण देखे होंगे, अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी ये भी उस पर आधारित है। आपने देखा होगा कि उन बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, उनके सिर की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, उनकी आईज की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, उनकी नेक छोटी रह जाती है और उनकी हाइट भी बहुत छोटी रह जाती है। और आप उन बच्चों को देखने से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे जो है डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने जो बात की है वो है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। व्हाट इज परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर? ये डिसऑर्डर जो है वो किस चीज से संबंधित है? ये डिसऑर्डर है कि इसमें जो बच्चा है अपने आप को सोशली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे हम कहते हैं कि किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जैसे हम कहते हैं कि किसी से कम्युनिकेट करने के लिए अगर आप में कॉन्फिडेंस है, हम कहते हैं कि आई टू आई कांटेक्ट बनाइए। तो ये बच्चा, इस प्रकार के जो बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। और ऐसे बच्चों के जो परसुएसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के शिकार हैं, ऐसे बच्चों के सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत कम होते हैं। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि 3 साल की एज में बच्चा अपने फ्रेंड्स सर्कल बनाना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसे बच्चों का फ्रेंड सर्कल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। तो उनके शौक भी बहुत लिमिटेड होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म जैसे आपको बीमारी का पता है कि ये आत्म केंद्रित से संबंधित बीमारी है, कि जो बच्चा है वो अपने ही संसार में जीता है, वो अपने ही दुनिया में खोया रहता है, वो बाहर लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। अब जैसे हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो खेलने की जो एक्टिविटीज हैं, वो प्लेइंग जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं और लगभग 2.5 साल तक, 3 साल तक आते आते बच्चों के छोटे छोटे जो उनके कांटेक्ट में आते हैं बच्चे, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। 3 साल के बाद तो अक्सर ये होता ही है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, ऑटिज्म से ग्रस्त जो बच्चे हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, वो अपनी ही धुन में खोए रहते हैं और वो सिर्फ आत्म केंद्रित रहते हैं, यानी कि एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाते। और अगर हम बात करें परसुएसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो उसी का ये पार्ट है ऑटिज्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑलपोर्ट सिंड्रोम की और क्रूजन सिंड्रोम की। ठीक है, अब ये देखिए कि क्रूजन सिंड्रोम में क्या होता है और ऑलपोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है। ठीक है, क्रूजन सिंड्रोम में आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, आपने कई बच्चों की आकृति देखी होगी। आकृति मतलब देखने ही से ही बच्चों की जो शेप है वो बहुत एक भयानक सी अलग सी शेप नजर आती है। जैसे कई बार बच्चों का सिर है ना, सिर के पास एक छोटा सा सिर और निकल आता है। उनकी जो आईज हैं वो बिल्कुल स्लांटिंग होती हैं, बिल्कुल टेढ़ी तिरछी इस तरह से। ठीक है, उनका जो फेस एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल अलग तरह से होते हैं। तो इस प्रकार की जो कॉजेज हैं, ये सारे के सारे किसके कॉजेज हैं? ये HI के कॉजेज हैं। अगर ये सारे के सारे कॉजेज आपको कहीं पर भी नजर आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जो बच्चा है वो HI से ग्रस्त है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट एंड एड्स फॉर HI। HI के लिए कौन से ट्रीटमेंट और कौन से एड्स है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें साइन लैंग्वेज की। अब साइन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भी आप एक न्यूज चैनल को देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं आप जो इन्हीं बच्चों से संबंधित है, जो इनमें क्या है कि डीफ एंड डम से रिलेटेड जो है वो न्यूज आती हैं और वो अपने हाथों की भाषा का, अपनी फिंगर्स का यूज करके, अपने हैंड्स का यूज करके, अपनी आर्म्स का यूज करके, कुछ साइंस का यूज करके साइन यूज करते हैं और जिसको डिकोड करके ये बच्चे उन चीजों को समझ जाते हैं जो डीफ स्टूडेंट्स हैं, जो डीफ एंड डम स्टूडेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिटरी स्पीच लैंग्वेज ट्रेनिंग। अब ऑडिटरी स्पीच क्या है कि जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे बोलने से वो क्या करते हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन
हमारे बोलने से वो अंदाजा लगा लेते हैं, तो क्योंकि उनको इस चीज के रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उनको बताया जाता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ओके, और अगर हम तीसरे की बात करें तो दैट इज फिंगर स्पेलिंग। अब यहाँ पर फिंगर स्पेलिंग की बात करें तो फिंगर स्पेलिंग में क्या होता है, अब जैसे ऐसे बच्चों को आपको एबीसी करानी है, अब आप क्या करोगे, आप अपने फिंगर को क्या करोगे, ए प्रोनाउंस भी कर रहे हो, बी आप हवा में जो है उस जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो अल्फाबेट आप पढ़ा रहे हो, आप हवा में उसकी आकृति भी बना रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया सी डी। तो इस तरह से शेप बनाकर आप बच्चों को फिंगर्स के माध्यम से ऐसे बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एड्स अप्लायंसेस एंड कॉक्लियर इम्प्लांट। बहुत सारे हियरिंग एड्स ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हो इन चीजों के लिए। सुनने के लिए आप ऑडियोमीटर का यूज कर सकते हो अगर आपकी पार्शल है बाधिता, तो उसमें आप हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग जो एड्स हैं बहुत सारे आप यहाँ पे लिसनिंग एड्स हैं, ठीक है, ALD, ठीक है, LD मतलब लिसनिंग एड्स। लिसनिंग एड्स का बहुत सारे लिसनिंग एड्स का आप यूज कर सकते हो। और कॉक्लियर इम्प्लांट में क्या है, देखिए इसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो HI है या श्रवण बाधिता से ग्रस्त है, तो उनमें एक हम उसको मशीन कह देते हैं, ठीक है, उसके अंदर के पार्ट में वो मशीन इम्प्लांट की जाती है और उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाहर के पार्ट में भी आपको नजर आता है, दैट इज कॉक्लियर इम्प्लांट। फिर है मेडिकल इंटरवेंशंस, कि कई बार आपको क्या है कि बहुत सारे, अब मेडिकल इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो हमारे स्टार्टिंग जो होती है वो PHC से होती है। अगर हम ग्रामीण लेवल पर बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वहां पर होते हैं कि जो कि एक ग्राउंड रूट पर काम करते हैं इन प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, इन प्रॉब्लम को समझने के लिए, और फिर मेडिकल इंटरवेंशंस के द्वारा यानी कि अच्छे डॉक्टर्स तक पहुंच के इन प्रॉब्लम्स को क्योर किया जा सकता है। सपोज कीजिए इसमें सर्जरी की जानी है या उससे संबंधित कोई भी चीज है तो आप डॉक्टर के पास जाके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है कर्व स्पीच। कर्व स्पीच क्या होती है, आप देखिए कि मैंने आपको फिंगर स्पेलिंग में बताया था कि आप जो भी आपको बोला जा रहा है, जो भी लेटर, जो भी अल्फाबेट, उसको आप फिंगर से वो मुंह से बोल रहे हैं और फिंगर से आप ड्रॉ भी कर रहे हैं, ताकि जो HI बच्चे हैं वो समझ सके कि कौन सा अल्फाबेट आपने ड्रॉ किया है। और कर्व में क्या होता है कि आपको उससे संबंधित पिक्चर भी दिखाई जाती है, ठीक है, जो भी आप मुंह से बोलना चाहते हैं, उच्चारित करना चाहते हैं, प्रोनाउंस करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको पहले पिक्चर दिखाई जाती है और फिर उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको दोनों को आपस में क्या सिमिलाइज किया जाता है। सिमिलैरिटीज उनमें होती है कि आप पिक्चर दिखा रहे हो और साथ साथ उस चीज को आप बोल भी रहे हो, प्रोनाउंस भी कर रहे हो। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी ट्रीटमेंट्स और एड्स हैं जो हम HI बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, और मैं ये कहती हूँ कि आपके सराउंडिंग में या आसपास जितने भी HI स्टूडेंट्स हैं या आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको अपने बच्चों में इस प्रकार का कोई भी लक्षण नजर आ रहा है, तो फ्रीक्वेंटली आपने करना क्या है, बहुत जल्दी से कि आपने उसको डायग्नोज करना है। एक स्पेशल टीचर की हेल्प से, आपने एक रिसोर्स टीचर की हेल्प से आपने उस बच्चे की, मान लो आप बैठे हो, आप बच्चा ऐसे कान करके सुन रहे आपकी बात को बहुत ध्यान से, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा, तो ऐसा नहीं कि आपकी उसने उसकी प्रॉब्लम को समझे नहीं। आपने एक रिसोर्स टीचर को और एक स्पेशल टीचर को और एक उसके बाद क्या है कि आपने ENT डॉक्टर्स को, तो उसको उससे कंसल्ट करवाना है, उसके पेरेंट्स को भी बताना है कि आपका बच्चा इस प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, क्योंकि बीइंग अ टीचर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to handle all types of students in our class, and I hope you will follow my instructions. Okay students, have a nice day.